Hey there, this is Kushal, and in this video, we are going to talk about decision trees, which is actually the second part of the session. And let's quickly continue after taking a quick recap, which we have seen in the last session, right? So, we have started with decision trees. As you already know, I don't have to explain it more because you have attended the last session. This is a top to bottom approach tree, okay, in which you basically divide your data set into parts, and based upon those parts you basically try to predict different variables at the end of each tree. Like, let's say जब आपके पास सिर्फ एक single row बच जाती है, so this tree gives you prediction of all the values, okay, and you can take any of those based upon what's your target variable. So now let's proceed with the remaining things, because in the last session we have talked about the basics of this thing, that is how a tree is made, the process of splitting, decision node, terminal node, leaf node, actually pruning, parent and चाइल्ड नोड एंड दीज थिंग्स, राइट. आज मैं आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, फिर रिकॉल इन्फॉर्मेशन गेन, राइट. व्हाट वाज इन्फॉर्मेशन गेन? इन्फॉर्मेशन गेन वॉज एक्चुअली जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, दैट्स नॉट इन्फॉर्मेशन गेन, दैट्स समथिंग एल्स. बट हमने वेरिएंस का एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास अगर दो बॉक्स हैं, एक के अंदर थे कुछ ट्रायंगल्स और कुछ स्क्वायर्स, राइट, और एक के अंदर थे सिर्फ स्क्वायर्स, और मैंने आपसे पूछा था कि किसके अंदर दो चीज़ों को डिवाइड करना आसान होगा, या फिर अगर आप इसके दो और सब ग्रुप्स बनाएंगे, राइट, तो कौन से ग्रुप्स के अंदर अलग अलग आइटम्स होंगे. तो ऑब्वियसली इसी के अंदर अलग अलग आइटम्स होंगे. एक के अंदर आप स्क्वायर्स कर सकते हैं, राइट, और एक के अंदर आप ट्रायंगल्स कर सकते हैं. यहाँ पे आप चाह के भी वो नहीं कर सकते, दोनों में आपको स्क्वायर करना होगा, राइट. तो ये चीज़ जो है, दिस इज़ एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएंस, कि आपके डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, अलग अलग टाइप का डेटा कौन से वाले क्लस्टर में है, और बेस्ड अपॉन दिस स्प्लिटिंग की जाती है, और वो स्प्लिटिंग करने का तरीका एंट्रोपी से होके गुजरता है, राइट. तो इस चीज़ को अब हम मैथमेटिकल बनाएंगे, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. तो हम जब भी लाइक आफ्टर लाइक understanding all of this thing, we need to talk about one more concept, and that is entropy, right. So now let's talk about entropy, okay. So in order to talk about entropy, let's talk about something. Basically let's connect again the variance part. तो entropy को समझने से मैं आप मतलब बेसिकली इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ something about impurity, ठीक है. तो अगर कोई चीज़ है, ठीक है, जिसके से हमने पहले एग्जांपल लिया था about triangle and this thing, तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, ओके, और इसके अंदर ट्रायंगल्स भी हैं और स्क्वायर्स भी हैं, ठीक है. विच थिंग इज़ मोर प्योर अबाउट इट, मतलब किसकी वेरिएंस कम है. तो प्योरिटी इज़ वेरिएंस, तो सो दैट मीन्स दिस इज़ प्योर, राइट, एंड दिस इज़ इम्प्योर, ओके. प्योर और इम्प्योर, ओके. तो ये जो एंट्रोपी थी, इट वाज इन्वेंटेड बाय शैनन, जब भी इसको कहा जाता है शैनन्स एंट्रोपी, and this basically measures the impurity of the data set, और basically impurity of the input data set, ठीक है. ये आपको बताता है the amount of impurity. Impurity मतलब क्या है? अलग अलग टाइप की डेटा. Obviously it is related to variance, but it is something else. It is in terms of probability. Variance is not a probability, but this thing is in terms of probability. इसकी जो range है, that is also between 0 to 1. Right, so just to you can say it is a normalized version of that, but actually the formula doesn't look like that. So let's talk about this entropy, and let's proceed with the rest of the decision trees. So okay, so now when entropy is 0, okay, that means all the members of the data belong to a same class. That means when entropy is 0, your data is purest, okay. That means entropy is equals to 0, okay. When entropy is 1,
ओके, एंट्रोपी इज़ 1। तो दोनों क्लासेस का नंबर सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 आपके कितने, ये कौन से वाले बॉक्सेस हैं, ये आपके ब्लू बॉक्सेस हैं, दैट इज़ दीज आर 5 और ये 4 हैं। तो हमें ये एक और ऐड करना पड़ेगा एंड वी विल लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एंट्रोपी 1 है एंड दिस इज़ इम्प्योर। अब यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो अगर बिगड़ता है तो ये एंट्रोपी की वैल्यू थोड़ी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये 0 से लेके 1 के बीच में रेंज करती है। अगर सारे के सारे येलो हैं या फिर सिर्फ सिंगल क्लास के हैं तो एंट्रोपी विल बी 0 एंड इफ़ इन दोनों के जो कंपोनेंट्स है दीज आर 50-50 तो एंट्रोपी विल बी 1, अदरवाइज बीच में वो लाई करेगी। ओके, तो इस चीज़ का एक ग्राफ भी आता है एंड दैट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, जैसे अगर आप एंट्रोपी को प्लॉट करते हैं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसे बढ़ के कम होती है, मतलब बेसिकली इट रेंज फ्रॉम 0 to 1, राइट। और ये 0 और 1 जो आप ये देख रहे हैं ये इस तरीके से बढ़ती है एंट्रोपी, एक पॉइंट पे जाके हो जाती है 1 जब दोनों 50-50 होते हैं। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द क्लासेस, दिस इज़ 1। तो जब एक क्लास की प्रोबेबिलिटी 0 है एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी 0। एक क्लास की प्रोबेबिलिटी टोटली 1 है तो एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी 1, राइट। नो अगेन हियर इट इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। तो अगर दोनों क्लासेस में से मतलब अगर पूरा का पूरा प्योर होता है, दोनों सेम होती है, या तो 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। किसी एक क्लास की बात कर रहे हैं हम, जैसे अगर ट्राइंगल और उसकी बात करी जाए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक ब्लू बॉक्स बनाऊँ और एक ये ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, येलो ट्राइंगल, तो इसके हिसाब से इन दोनों की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर इसकी क्वांटिटी भी 5 है, इसकी भी 5 है, ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.5 तो 0.5 के हिसाब से एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी 1 हेयर, ठीक है। अगर इन दोनों की जो अमाउंट है इट इज़ लेट्स से समथिंग लाइक दिस 1 और 9, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.1 और 0.9, ठीक है। तो 0.1 यहाँ लाई करता है, 0.9 यहाँ लाई करता है। अगर मैं 0.1 को यहाँ बोलूँ, ठीक है, और 0.9 को यहाँ बोलूँ, द एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी सेम। आप देखें ये चीज़ और ये, मतलब मैंने थोड़ा सा स्केल के हिसाब से नहीं बनाया बट यू कैन सी ये थोड़ी सेम है। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा स्केल के तरीके से नहीं बनाया है। एंट्रोपी इज़ सेम, ओके, दैट इज़ 0.1। अब आप 9 की देखो या उसकी देखो, इट इज़ गोइंग टू बी 0.1, राइट। सो दैट्स एंट्रोपी एंड दिस इज़ हेल्पफुल इन बेसिकली स्प्लिटिंग अ नोड। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा स्प्लिट करने के, वन इज़ दिस थिंग, वन इज़ द जिनी इंडेक्स, और उन दोनों पे पूरे ट्री को स्प्लिट करते जाते हैं ऑल्दो वी वोंट बी एबल टू कोड इट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि इसके लिए यू नीड टू नो the data structures which are not included in this course, so I won't be able to code it from scratch right now, but in some of my YouTube video you'll see someday I'll be coding it from scratch as well. Before explaining that, I'll have to explain you basics of data structures, so whenever I'll be giving you the video of that, I'll be uploading this one as well. Okay, so now let's proceed with the further explanation of this thing. तो ये है आपका एंट्रोपी, ठीक है। और एंट्रोपी के हिसाब से हाउ डू यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू स्प्लिट, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंट्रोपी के हिसाब से करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। एंड इन्फॉर्मेशन गेन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सो इन्फॉर्मेशन गेन इज इक्वल्स टू entropy of previous node. Entropy means entropy of previous node mean entropy of parent node, ठीक है, minus entropy of the children, and this is going to be average entropy. I'll let you know about this. So this is entropy of the child node. Okay, दिस इज एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आप जब स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले पेरेंट नोड की एंट्रोपी निकालिए, उसके बाद में चाइल्ड नोड की एंट्रोपी निकालिए। उन दोनों को नहीं, उसका एक प्रोसेस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ।
So in order to understand this thing, let's now take one example. Okay. और ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हम एक यूज़ केस कंसिडर करते हैं जिसमें लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल दो तरह के लोग हैं. ओके, लेट्स से वी हैव अ पॉपुलेशन लाइक दिस इज़ आवर सेंट्रल पॉपुलेशन. और लेट्स से इसमें वही ट्रायंगल्स हैं कुछ, ठीक है, और कुछ सर्कल्स हैं. मैं अब स्क्वायर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है. सो लेट्स से कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, और उस हिसाब से दो क्लासेस हैं यहाँ पे. ओके, let me make some triangles as well. So this is our data. Now like we're not going to consider any large data. This is a simple data. Okay, तो यहाँ पे हम बात करते हैं. let's say हमारे पास 30 लोगों का ये डेटा है. 30 लोगों का नहीं, 30 शेप्स का डेटा है. ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनके वो कुछ अलग अलग तरीके के हैं. लेट्स से इनके कुछ फीचर्स हैं. ओके, फीचर्स क्या हैं, या फिर इससे भी अगर मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूँ, थोड़ा सा इंट्यूटिव एग्जांपल दूँ, तो वो एग्जांपल हो सकता है स्कूल का डेटा, जो कि बहुत कॉमन डेटा होता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको एक्सप्लेन करने में. स्कूल के डेटा में क्या होता है, यू हैव बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके, और यहाँ पे 3 फीचर्स बन जाते हैं. एक तो जेंडर, ओके, एक होता है क्लास, ओके, एक होता है हाइट. मेजरली ये 3 डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस. ओके, जेंडर, क्लास एंड हाइट. और इसमें से कुछ डेटा की जो सेटिंग है वो ऐसी है कि जो जेंडर है दैट इज़ मेल फीमेल होगा ऑब्वियसली. दिस इज़ द यूनिक सेटिंग, मेल फीमेल मेल ऐसे करके. ओके, ऐसे डॉट 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 कुछ हैं. क्लास भी बहुत सारी, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लास 8 एंड 9th ऐसा कुछ सिस्टम है. हाइट है 5 से 6 फीट, तो ये सबकी 6 और 5 के आसपास ही, ठीक है, 5.5 और समथिंग ऐसे. सो दिस इज़ अ डेटा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 30. लेट्स से 30 स्टूडेंट्स का डेटा है. ओके, दिस इज़ अ डेटा ऑफ 30 स्टूडेंट्स, राइट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हमें क्या करना है, हमें एक मॉडल बनाना है कि क्रिकेट कौन खेलेगा इसमें से, क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स पीरियड में बाहर कौन जाएगा, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन करना है इसमें यूजिंग डिसीजन ट्री. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम कुछ स्प्लिट कंसिडर करेंगे. स्प्लिट, इस डेटा को स्प्लिट करना है ना, हमें ऑब्वियसली हमने जो भी चीज़ें सीखी उसके हिसाब से, तो हम यहाँ पे स्प्लिट कंसिडर करेंगे, ठीक है. तो उसके लिए हम सबसे पहले पेरेंट नोड क्या है, यहाँ पे सबसे पहली जो पेरेंट नोड है दैट इज़ प्ले क्रिकेट और नॉट. सबसे पहला जो टास्क है दैट इज़ टू स्प्लिट इट यूजिंग प्ले क्रिकेट और नॉट, ठीक है. तो अब हम उस हिसाब से क्या करेंगे कि एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पेरेंट नोड के लिए, दैट इज़ प्ले क्रिकेट और नॉट, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, इसका ये जो बेसिकली डेटा का सेटिंग है, इसमें हमें ये गिवन है कि कितने लोग क्रिकेट खेलेंगे, कितने लोग नहीं खेलेंगे. ऑब्वियसली इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग काइंड ऑफ थिंग. सो क्रिकेट खेलना ना खेलना 0-1-0-1 ऐसे करके कुछ है. और जो डेटा का एग्जाम्पल ये है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स तो 30 हैं और क्रिकेट खेलने वाले हैं 50%, ठीक है. उसमें मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, 50% स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलने वाले. ओके, अब इसके बाद में एंट्रोपी अगर हम कैलकुलेट करें तो एंट्रोपी इक्वल्स टू एंट्रोपी, ऑब्वियसली मैंने आपको भी एंट्रोपी का फॉर्मूला नहीं बताया, लेट मी जस्ट टेल यू दैट क्विकली. एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ -P, ओके, log 2P - Q log 2Q, ठीक है. P क्या है, प्रोबेबिलिटी है. Q क्या है, 1 - P है. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, जो हम ट्रायंगल और स्क्वायर की बात कर रहे थे. इफ़ यू रिमेंबर, अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.1, वो 9 है तो 0.9 और समथिंग, तो 1 - 0.1 दैट मेक्स इट 0.9. सो दिस इज़ द सिंपल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी. बट इस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें पता है व्हाट इज़ एंट्रोपी एंड वी कैन ऑलवेज गेट इट फ्रॉम गूगल. द मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड इट हियर. तो ये एंट्रोपी जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, P स्टार लॉग ऑफ दैट. तो अब यहाँ पे हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल दे प्ले क्रिकेट और दे वोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है. तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि 50% लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5 क्रिकेट खेलने की. तो एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, -0.5 लॉग ऑफ -0.5. ये लॉग बेस 2 है. जब हम लोगैरिथम
सीखा करते थे कैलकुलस में, मैंने आपको आई गेस जब शुरू में सेशंस चालू हुए थे 4 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले जब हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था लॉगरिथम का कुछ बेस होता है. सो दिस इज log base 2 of 0.5 which is easily calculable in the Python, and minus again 0.5 log base 2 of 0.5. ठीक है, और ये आंसर निकल के आएगा 1. क्यों आएगा 1? क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली यू नो एंट्रोपी इज गोइंग टू बी 1. हमने जो ग्राफ बनाया था प्रीवियस पेजेस में, जब प्रोबेबिलिटी 50% होती है 1 निकल के आती है, राइट. तो ये एंट्रोपी पेरेंट नोड की आ गई 1, और इसका मतलब क्या है, ये एक इम्प्योर नोड है. दिस हैज़ इम्प्योरिटी, मतलब कोई भी एक सिंगल क्लास का नहीं है, इट हैज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेरिएंस. ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि फर्दर स्प्लिटिंग. तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई है, जो आपका पूरा डेटा था, किसका डेटा था ये? स्टूडेंट्स का. ठीक है, स्टूडेंट्स के डेटा को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. वन इज़ द पीपल हु प्ले क्रिकेट, ओके, एंड द पीपल हु डू नॉट प्ले क्रिकेट. सिंपल, मतलब अभी किया नहीं है बट एक आइडिया लगा रहे हैं हम, मतलब बेसिकली हमने समझ लिया हमारे को. अब हम फर्दर उसकी स्प्लिटिंग अब करेंगे. ठीक है, हमने समझ लिया है कि कितने लोग क्या हैं. अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए, और वो ऑप्शंस क्या हैं? फीचर्स. ठीक है, सबसे पहला पेरेंट नोड तो मैंने आपको बता दिया, क्रिकेट वाला. ठीक है, उसके बाद में जो ऑप्शन है दैट इज़ हाइट, क्लास एंड जेंडर. इनके बेसिस पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, हाइट, क्लास एंड जेंडर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास और जेंडर और हाइट तीनों या इनमें से किसी दोनों के ऊपर एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या है. इन्फॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला हमने समझा था, आई होप आपने लिखा हो सब कुछ, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर हमें इसको स्प्लिट करना है. और ये बेसिक्स जब मैं आपको समझा दूंगा, जब वी आर फुली केपेबल टू कोड इट यूजिंग scikit-learn, बिकॉज इन ऑर्डर टू कोड फ्रॉम स्क्रैच वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सप्लेन दैट यू. तो सबसे पहले कोशिश करते हैं जेंडर पे स्प्लिट करने के लिए. ठीक है, जेंडर पे स्प्लिट अगर आपने करना है तो आपको ऑब्वियसली एंट्रोपी निकालनी होगी फीमेल्स की. तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कितनी फीमेल्स हैं और कितनी मेल्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको अब बताता हूँ कुछ और डेटा के बारे में, स्टैटिस्टिक्स, कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो हैं 10. ठीक है, 10 फीमेल्स हैं, 20 मेल्स हैं. ठीक है, और इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन जो हम पहले ही कर चुके हैं क्रिकेट खेलने वाला, कि 10 फीमेल्स में से 2 क्रिकेट खेलती है. ठीक है, तो कितनी नहीं खेलती? 8 नहीं खेलती, पर नहीं से में मतलब नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स 20% फीमेल्स क्रिकेट खेलती है. ठीक है, और जब 20 मेल्स हैं, 20 मेल्स में से 13 क्रिकेट खेलते हैं, 13 क्रिकेट. ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंपल डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ठीक है, तो इसमें 65% लोग क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है इन दोनों की बेस्ड अपॉन क्रिकेट. तो प्रोबेबिलिटी क्रिकेट की ही मानी जाएगी यहाँ पे, कि कितने मेल क्रिकेट खेलते हैं, कितने फीमेल क्रिकेट खेलते हैं. हमेशा क्रिकेट के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करते रहेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फीमेल और मेल के हिसाब से एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, फीमेल एंट्रोपी इक्वल्स टू, या फिर एंट्रोपी फीमेल, ऐसे आप लिख सकते हैं, एंट्रोपी फीमेल इक्वल्स टू. ठीक है, तो ये कितनी है, -0.2 log base 2 of 0.2 माइनस ऑब्वियसली वो जो आएगी दैट इज़ 1 minus 0.1, दैट्स गोइंग टू बी 0.8 log base 2 0.8. ये 0.8 कैसे आया? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बिकॉज वो फॉर्मूले में जो पी और क्यू समझा था, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू एज वेल. और इसके बाद में यू विल गेट द आंसर नियरली अराउंड 0.7 और समथिंग, 0.72, राइट. और जो मेल की एंट्रोपी आएगी, एंट्रोपी ऑफ मेल, एक्चुअली कैलकुलेट की हुई है पहले, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 0.93. ठीक है, ये पहले से करी हुई है, आई एम जस्ट फॉलोइंग समथिंग, दिस इज़ नॉट, I also follow some resources, right? So 0.93 is male entropy and that is female entropy. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंट्रोपी
जो है निकल के आई, ये दोनों उनका वेटेड सम लेना है, नॉट टू अंडरस्टैंड कि हम जेंडर पे स्प्लिट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वेटेड सम लेने का मतलब क्या होता है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से सम। जैसे एक एंट्रोपी हमारे पास आई है 0.72 और एक आई है हमारे पास 0.93, ठीक है। अब दोनों का वेटेड सम लेने के बाद विल बी एबल टू डिसाइड वेदर वी हैव टू कीप इट और नॉट। तो वेटेड सम कैसे लेंगे, आई होप यू आर राइटिंग एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो वेटेड सम आप कैसे लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी एंट्रोपी ऑन जेंडर के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, दोनों एंट्रोपी को ऐड करना है, पर तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों एंट्रोपी को ऐड करते हैं 0.72 प्लस 0. मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे करता हूँ 0.72 और 0.93, ठीक है। इसके साथ में एक वेट मल्टीप्लाई होगा, वेट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो 0.72 के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 10, सो 10/30 बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स आर 30, और इसमें भी सेम चीज़ होगी, दैट इज़ 20/30 एंड दैट इज़ योर एंट्रोपी ऑन जेंडर। ये सिर्फ फीमेल की थी, ये सिर्फ मेल की थी, ये दोनों की कंबाइंड है। तो ये कैसे ये बेसिकली कैसे कंप्यूट किया जाता है, आप पहले क्लास के हिसाब से निकालेंगे कि कितने % लोग हैं, बाद में उन दोनों को कंबाइन करके एक स्कोर निकलेगा, और वही स्कोर हम इस पर भी निकालेंगे, दूसरे हर फीचर पे ये स्कोर निकालेगा। तो इसका बेसिकली एक फंक्शन बनाया जाएगा और उस फंक्शन से स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस स्कोर विल बेसिकली कम आउट टू बी 0.86, राइट, ओके। और ये जो 0.86 है, ये है एंट्रोपी ऑफ स्प्लिटिंग ऑन जेंडर, ठीक है। इट इज़ एंट्रोपी ऑफ स्प्लिटिंग ऑन जेंडर। अब जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गेन का एक फॉर्मूला बताया था, एंट्रोपी समझने के बाद हम निकालेंगे इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, पिछली एंट्रोपी को बाद की एंट्रोपी से माइनस कर दो, ठीक है। पिछली एंट्रोपी क्या थी, पिछली एंट्रोपी थी हमारी 0.1 निकल के आई थी, इफ़ यू रिकॉल। ये जो थी, जो हमने एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट क्लास निकाली थी, क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये आई थी 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो विल डू 1 माइनस 0.86, ठीक है, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.14। तो ये है जेंडर के ऊपर आया हुआ स्कोर, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने इस पे किया है, जो आपने आई होप लिखा हो तो इजी होगा समझना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब हम हाइट वाले इस पे भी करेंगे, नॉट हाइट बट क्लास के ऊपर, कि कौन सी क्लास से हैं वो लोग। और क्लास से करने के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि डेटा बहुत पुराना है और उस पर सब चीज़ें कंप्यूट करी हुई है, क्लास से करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गेन आएगी, नॉट एंट्रोपी आई थी 0.99, ठीक है। एंट्रोपी ऑन क्लास वो 0.99 जब भी कंप्यूट किया गया था। और जो एंट्रोपी बेसिकली नॉट एंट्रोपी, जो इन्फॉर्मेशन गेन थी ऑन क्लास, दैट वाज 0.01, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन गेन कम है, इसकी इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा है। तो बेसिकली स्प्लिट ऑन जेंडर इज़ हाईएस्ट, सो ट्री विल स्प्लिट ऑन जेंडर। तो यहाँ से अब हम जेंडर के हिसाब से स्प्लिट करेंगे। तो ऐसे बेसिकली स्प्लिटिंग होती जाएगी क्रिकेट के हिसाब से। और बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे अल्टीमेटली द टारगेट वेरिएबल इज़ क्रिकेट ओनली, ठीक है। टारगेट वेरिएबल इज़ क्रिकेट। तो इसके हिसाब से स्प्लिट करते जाएंगे, एंड में जाके सिर्फ एक सिंगल रो बचेगी और हमें पता लगेगा कि कैसे स्प्लिट होती है। और फिर इसी ट्री को जो हमने कोड किया होगा, इसके हिसाब से वी विल ऑलवेज बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। जब भी आप इसमें फीचर्स डालें, उस हिसाब से वो स्प्लिट होता एंड में आपको बता देगा हाँ कि ये वाला बच्चा क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, राइट। सो आई होप दैट्स क्लियर, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, दैट वाज इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस ऑफ डूइंग इट इज़ गिनी इंडेक्स और जिनी इंडेक्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो आई होप इन्फॉर्मेशन गेन इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ जिनी इंडेक्स। और जो जिनी इंडेक्स है, ये भी एक सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियसली फॉर्मूले का फ़र्क है। और फॉर्मूले का फ़र्क क्या है, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ जिनी इंडेक्स वाला फॉर्मूला, एंड दैट इज़ p² + q²। जो p और q वहाँ पे होती थी 2 क्लास की, वही p और q यहाँ पे है, एंड दिस इज़ p² + q², एंड दिस इज़ योर जिनी ऑफ एनी फीचर, ओके। तो अब हम पुराने एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जेंडर का वो डेटा था, मैं आपको पूरा डेटा दोबारा बना के नहीं दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, लेट्स से मान लो आपने जिनी इंडेक्स कंप्यूट किया दोनों चीज़ों पे,
जेंडर पे एक तो आप जेंडर के हिसाब से स्प्लिट कर रहे हो, एक आप क्लास के हिसाब से स्प्लिट कर रहे हो। तो उसी एग्जांपल में यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखता हूँ, जेनी बेस्ड ऑन जेंडर एंड जेनी बेस्ड ऑन क्लास, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे जेनी बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है। तो जब हम फीमेल की बात कर रहे थे वही वाली चीज़ें सेम है इधर। जेंडर पे जेनी निकालने के लिए आप क्या निकालना पड़ेगा, जेंडर बेसिकली जो जेनी है वो फीमेल पे निकालना पड़ेगा, जेनी मेल पे निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना है लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस के साथ। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये पी और क्यू कौन से वाले हैं, ये जो आई होप यू रिमेंबर जो हमने पहले किया था, ये जो एफ और एम निकलेंगे तो बेस्ड ऑन क्रिकेट के हिसाब से जो स्प्लिट हुआ है वो हैं। पी और क्यू जो हैं वो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल के हिसाब से। लेट्स से अगर नंबर ऑफ फीमेल हैं 20% और नंबर ऑफ मेल्स हैं लेट्स से नॉट 20%, एक्चुअली जो फीमेल्स थी दोज वर 10 एंड मेल्स वर 20, ठीक है। इसमें इस 10 में से 2 क्रिकेट खेलती थी और 20 में से 13 क्रिकेट खेलते थे। तो इस हिसाब से जो GM और GF निकलेंगे वो 2F और 2, ये बेसिकली 2 और 13 पे निकलेंगे जो क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, और इनके साथ जो इंपॉर्टेंस होगी वो इस हिसाब से निकलेगी। दैट मीन्स यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 20/30 बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स आर 30, और यहाँ पे होगा 10/20, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो GM है ये बेसिकली यही वाला फॉर्मूला है, P² + Q² मतलब 0.2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी व्हाटएवर 13 और 20 के हिसाब से 13/20 या बेसिकली व्हाटएवर, तो उस हिसाब से जो निकल के आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी GM, राइट। एंड इसके बाद में बेसिकली जब ये 20% फीमेल्स हैं और ये आई गेस 65% या कुछ थी, ठीक है। तो 65% कि मैं आपको अगर आप चाहो तो मैं फॉर्मूला एक बार आपको लगा के बता दूं। आई होप यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, तो जस्ट टू मेक एवरीथिंग क्लियर मैं फॉर्मूला पे लगा के बताता हूँ। तो ये 10/20 तो अलग है, GF मतलब P², तो जो फीमेल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स P क्या है 20%, दैट मीन्स 0.2, क्योंकि 10 में से 2 फीमेल्स खेलती हैं। तो 0.2 इंटू 0.2 ये तो हो गया P²। अब करेंगे Q², तो Q² क्या है 0.8 इंटू 0.8, क्योंकि 1 - P इज़ Q, माइनस अगेन 20/30 इंटू, अब मेल्स की क्या है 65%, तो अगर इधर है 65 तो दैट मीन्स 0.65 इंटू 0.65, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ना इसका, P² + Q², और यहाँ पे मैं करूँगा प्लस। एक्चुअली ये दोनों भी प्लस होनी थी, और इस तरीके से मैं ब्रैकेट बना देता हूँ कि वो तो वेट्स थे और ये हमारी जिनी है इसके अंदर। तो 0.65 और यहाँ पे होगा 0.65 - 1 दैट इज़ 0.35 इंटू 0.35, और ये हमारी है जिनी। तो मैं जिनी को क्या करता हूँ रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आप मैच कर सकें कि हाँ ये रेड है और ये इससे मिला हुआ है, बेसिकली ये है और ये इधर कंप्यूट किया है, राइट। सो दैट्स हाउ आप जेनी इंडेक्स कंप्यूट करेंगे दोनों क्लासेस पे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो आपका जेनी इंडेक्स है फर्स्ट का वेटेड जेनी इंडेक्स, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस मल्टीप्लाई किया, अभी ऊपर जो फॉर्मूला लगाया दैट केम आउट to be Gini on gender, that came out to be 0.59 on this data, and Gini on class that came out to be 0.51 on this data based upon Gini. And you can see Gini score for split on gender is higher than split on class, hence the node or basically data will be split based upon gender. Okay, तो gender के हिसाब से डेटा को split कर दिया जाएगा 50-50, जैसे भी gender के हिसाब से split होगा बाकी रो उसी के हिसाब से split हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसिकली ये जो जिनी है और ये है, बेसिकली ये दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। जिनी इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग क्लासिफिकेशन ट्रीज, जहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, एंड इन्फॉर्मेशन गेन इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग regression trees or prediction trees, you can see. So now we'll proceed and code any data or some data using scikit-learn obviously. And if you know data structures, you can also code it from scratch. I'm there to assist you, right? So now let's go to Google Colab and let's try coding decision trees using scikit-learn. So guys, this is our Google Colab, and in order to code decision trees we basically need to import some scikit-learn things. Obviously I always motivate you to code things from scratch, but जब हम पूरी मैथ्स सीख चुके हैं तो इट्स बेसिकली ईजी। कभी कभी क्या होता है हम मेरा मैथ्स सीखे scikit-learn से कोड करते हैं और हम कुछ सीख नहीं पाते, तो हमारी लर्निंग यहाँ पे हिंडर नहीं हो रही जस्ट बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज की ज़रूरत है, और वो मैं अभी इतने शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम में नहीं सिखा सकता आपको। दैट्स व्हाई वी आर कोडिंग इट यूजिंग sklearn. सो फ्रॉम
sklearn import tree, ठीक है। और ये जो ट्री है इसमें हम एक डेटा सेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक डेटा यूज़ करते हैं, दैट इज़ x इक्वल्स टू, ऑब्वियसली ये मैं sklearn के डॉक्यूमेंटेशन से आपको बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0 0 एंड x इक्वल्स टू 1 1, ठीक है। और जो हमारा y है दैट इज़ 0 1, ओके। तो ये हमारी दो फीचर्स हैं, दो फीचर्स हैं और उन हिसाब से एक एक क्लास है, ठीक है। इस डेटा को हम यूज़ करेंगे, हम एक क्लासीफायर बनाते हैं हमेशा sklearn में, मतलब जो भी चीज़ आप जो इंपोर्ट करते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और बेस्ड अपॉन देन वी बेसिकली फिट इट ऑन आवर डेटा। सो लेट्स सी, ट्री जो हमने ट्री इंपोर्ट किया, ट्री डॉट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ये हमारा क्लासीफायर बन जाएगा एंड देन विल बी एबल टू फिट इट। सो नाउ फिट इट, सो CLF इक्वल्स टू CLF डॉट फिट x कॉमा y। इसके बाद में हम बेसिकली विल बी एबल टू प्रोडिक्ट क्लासीफाई के 0 कौन से क्लास से है, 1 कौन से क्लास से। दैट्स अ वेरी नाइव एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेट इट रन, ओके। सो नाउ इट इज़ बेसिकली फिट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CLF डॉट प्रेडिक्ट और अगर उसमें मैं लगाऊँ लेट्स से 2,2, तो ये मुझे बताएगा कि ये 1 क्लास से है बिकॉज इट डज़ नॉट बिलोंग टू 0, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0,0 या फिर 0 या 1 और समथिंग, तो बताएगा कि 0 क्लास है। तो 0 होगा तो वो 0 से ज़्यादा हुआ तो दूसरा ग्रुप, ऐसा कुछ इसने क्लासीफाई किया है इसके अंदर। दैट्स बेसिकली द पैटर्न बेस्ड अपॉन जिनी और जो भी हम मैथ्स अभी सीख के आए हैं, ठीक है। तो हम यही काम करते हैं आइरिस डेटा सेट के ऊपर। एक आइरिस डेटा सेट है जिसमें जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में कुछ फीचर्स हैं और उस डेटा सेट को यूज़ करके लेट्स ट्राई टू मेक अ डिसीजन ट्री और उसका प्लॉट, ठीक है। सो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड iris, ओके, एंड ऑब्वियसली वी हैव sklearn डॉट ट्री। और इसके बाद में हमें क्या करना है, iris डेटा को लोड करना है। सो x कमा y इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर iris रिटर्न x अंडरस्कोर y इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसके बाद x और y के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, ओके। नो मॉड्यूल फाउंड sklearn डॉट डेटा सेट्स, दैट्स नॉट डेट सेट्स, डेटा सेट्स, ओके। और आप देखें अगर तो ये x है जिसमें आई गेस 4 फीचर्स हैं एंड दीज आर फ्लावर, फ्लावर की लेंथ, विड्थ, कलर, कुछ ऐसा इसके अंदर फीचर्स होते हैं। आप देख सकते हैं आईएस डेटा सेट के डॉक्यूमेंटेशन में। और y इज़ योर क्लास का ये कौन सा फ्लावर है। तो आई गेस यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, 3 तरीके के फ्लावर्स हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, दैट इज़ 3 क्लास क्लासिफिकेशन। So CLF equals to again tree dot decision tree classifier और CLF, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं डॉट fit x comma y and it will train on this thing, okay। इसके बाद में आप प्रेडिक्ट करिए या प्लॉट करके देख लीजिए, tree dot plot underscore tree CLF and it will, I guess it will show a tree. So that's the tree it is able to make. इसमें आप देख सकते हैं इसने हर एक के हिसाब से जिनी इंडेक्स और वो सब कैलकुलेट किया है और ये सारी मैथ्स हम सीख के हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट स्केयर्ड अबाउट इट, राइट। तो ये वही जिनी इंडेक्स कैलकुलेट करते करते एंड में इट इज़ एबल टू गिव अस क्लासिफिकेशन। इसके फिगर को बड़ा करने के लिए आई गेस देयर विल बी सम पैरामीटर रिगार्डिंग फिग साइज और समथिंग, but that's not our thing. You can always save it and zoom it, but that's not our thing. But right now, like you can see, that's how you can code decision trees, okay, and that's our decision tree, ठीक है। इसमें जो regression होता है that is also possible। अगर आप decision tree classifier किसी decision tree regressor लगाएंगे तो it will be able to give you predictions। वहाँ पे वो फिर जो regression trees है वो use करेगा। सिंपल थिंग है, जो आउटपुट होगा वो उस हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट इट। जो आपका जिनी इंडेक्स है दैट्स फॉर क्लासिफिकेशन, जो एंट्रोपी सीखी थी वो बेसिकली रिग्रेशन के लिए होता है। सो व्हेन एवर यू डू एंट्रोपी यू आर एबल टू डू रिग्रेशन, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, you basically you should try to apply this decision tree thing on your face data set। और face data set में आई गेस कोई ऐसा डेटा सेट मिले आपको जहाँ पे फेस पोजीशंस हों, तो उन पोजीशंस के हिसाब से आप क्लासीफाई कीजिए और फिर देखिए वो आपके फेस को किस तरीके से ग्रुप्स में मैप करता है, राइट। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू सी कि किस हिसाब से वो क्लासीफाई करता गया। और
that's your assignment of choice, because you'll have to do it if you really want to make a portfolio. And that's the whole thing about decision trees, and that thing is clear. Next topic is random forest, which will be discussed in the next video. If you have any doubts, you can put it in the live chat. And definitely I hope you liked the video. I hope you liked this fast approach. Thank you so much for watching it. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.